بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں، جب بھی میں لائیو ہوتا ہوں میرے ساتھ ایک دوست، ایک مہمان موجود ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی زبردست قسم کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا نام شہزاد اقبال مصطفی صاحب ہیں۔ اور ثاقب اس لیے میرے منہ سے نکل گیا کہ ثاقب رضا مصطفی صاحب بھی ہمارے گجرانوالہ کے ہیں، تو یہ مہمان بھی ہمارے گجرانوالہ کے ہی ہیں۔ تو بڑے پیار والے، بڑی محبت والے، ایک عرصہ سے تقریباً 4-5 ماہ سے یہ مسلسل مجھ سے رابطہ بھی کرنا چاہ رہے تھے، ملنا بھی چاہ رہے تھے۔ اور بڑے ہی ماشاءاللہ ملنسار قسم کی طبیعت کے یہ بندے ہیں۔ اور آج کل میری ان سے ملاقات بھی ہوئی سر نوید ہنر والا صاحب کے ساتھ۔ تو آج میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں۔ انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا اور ہماری اس بات کو سراہا۔ اس کے لیے میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ اس کے علاوہ ناظرین، میں اپنے معزز مہمان کی طرف جانے سے پہلے بتاتا چلوں، دس لائیو انٹرویو سیریز سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس، دا پارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی۔ بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کو ویلکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی کیسے ہیں؟ بسم اللہ، السلام علیکم۔ شہزاد بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اب آپ کی آواز صحیح ہے۔ اچھا، شہزاد اقبال مصطفی صاحب، یہ تو ایک تعارف تھا۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں ہمارے ویورز کو کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جی میرا نام شہزاد اقبال مصطفی ہے۔ تو زاہد بھائی، میرا تعلق بیسیکلی کلاس کے قریب گاؤں ہے حسن والی سے ہے۔ شہزاد بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بھائی، آواز آ رہی ہے؟ جی رپیٹ کیجیے گا، آواز کٹ گئی۔ میں کہہ رہا تھا شہزاد اقبال میرا نام ہے، اور میرا بیسیکلی تعلق کلاس کے قریب ایک گاؤں ہے حسن والی سے ہے، جہاں میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ادھر گجرانوالہ میں ہم شفٹ ہو گئے تھے، تقریباً 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں۔ تو بیسیکلی میں ڈی اے الیکٹریکل کیا ہوا ہے، تو ایک شاپ چلا رہا ہوں الیکٹریکل ریپیئرنگ کے نام سے، ایس ایم الیکٹریکل ریپیئرنگ کے نام سے، ادھر ہی کام وغیرہ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ابھی اپنے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کو امپروو کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا سہارا لیا، جس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ سر ریحان اللہ والا کے ساتھ جڑے، اس کے بعد سر نویز والا کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو الحمدللہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے ذریعے کوشاں ہیں۔ صحیح، زبردست۔ شہزاد اقبال صاحب، آپ نے سر ریحان اللہ والا صاحب کا ذکر کیا، نوید ہنر والا صاحب کا ذکر کیا، اور رانا ترکی والا کا تو آپ ذکر کرنا ہی بھول گئے نا۔ چلے کوئی نہیں، رانا ہو جاتا زاہد ہے ایسا ترکی تھوڑا والا بہت۔ صاحب کو تو تو یہ تو ہمارے سمجھے نا، وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہماری ملاقات اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بہتر ہو گئی، جو دلی خواہش تھی۔ ال- الحمدللہ، مجھے بھی قدر تھی، آپ کافی دیر سے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، ملنا چاہ رہے تھے، اور میں نے بھی اس دفعہ تہیہ کیا تھا، فیصلہ کیا تھا، اور پنجابی میں کہتے ہیں دل جی گنڈ ماری تھی کہ اس دفعہ تو آپ سے ملنا ہی ملنا، کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں جی، تو دیکھیں آپ نے چلیں بھی سر ارادہ کیا نوید اور میں نے بھی۔ ہنر والا صاحب سے۔ جی سر، آپ زاہد بھائی، آپ نے جی بھی ارادہ بالکل، کیا اور میں نے بھی ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروا دی ہماری، ہوں، ماشاء اللہ۔ جی بالکل۔ اور سر نوید ہنر والا صاحب اس کا سبب بنے، اس ہاں ملاقات جی، کا وہ ذریعہ بنے، میں تو ان کا ان کے بھی پاس جانے لگا تھا، بہت لیکن مشکور انہوں ہوں۔ نے مجھے خود ہی پلاس بلا لیا۔ صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو شہزاد اقبال صاحب، آپ گجرانوالہ کے ہی ہیں تقریباً، تو اب تو جی سر، گجرانوالہ کے ہیں، تھوڑا سا گاؤں کے ہاں جی پاس ہی۔ الحمد للہ۔ تو آپ ذرا ہمیں گجرانوالہ کے حوالے سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو، یعنی ہمارے ویورز کو بتائیں کہ گجرانوالہ کیسا شہر ہے اور اس کی خاصیت کیا ہے؟ گجرانوالہ کا نام جب بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ، بغیر کسی، یہ شاید ویسے بھی کسی متعارف کا محتاج نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے شہر میں جو انڈسٹری ایریا ہے وہ الحمدللہ بڑا بہتر چل رہا ہے۔
वैसे भी। और कुछ लोग अपना काम छोटा मोटा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर अपना। ये हमारे शहर का समझ लें कि बहुत बड़ी खूबी है कि हमारे इधर हाँ से बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रीज में जो बाहर के मुल्कों में बड़ा बड़ा सामान जाता है। और शहर गुजरांवाला का नाम जैसे पता है कि पहलवानों का शहर है, तो खाबों के लिहाज से भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। वो तो समझ लिया कि हमारे लिए बेस्ट है ना। तो बाकी इधर पहलवानों का शहर है तकरीबन। आपकी सेहत के मुताबिक वो क्या, माशाल्लाह आपकी सेहत कम है थोड़ी सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इधर वो पहलवानों का शहर है। अगर बाप मोटा है ना तो उसके बेटे भी माशाल्लाह ठीक ठाक पहलवान होते हैं। वो बात मशहूर है ना हमारे गुजरांवाला की। सही, वो कहता है किधर बिल्कुल। जा रहा है, वो कहता है खाने जा रहा हूँ, खाना खाने जा रहा हूँ। तो क्या किधर से आ रहा है, वो कहता है खाना खा के आ रहा हूँ। तो ये तो हमारा यूँ कहना है ट्रेंड है एक। काम, सारा दिन काम करें और शाम को खूब इंजॉय करते हैं। हम्म। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में बिल्कुल पार्क ऐसा ही वाला की है। सब तफरीयत है। सही। बिल्कुल शहजाद इकबाल साहब, आपने सही फरमाया। अक्सर मैं, आपने भी ठीक नुक्ता जो है ना पकड़ा, नोट किया। मैं अक्सर शहर से बाहर जाऊँ, कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो मैं कहता हूँ जी जी गुजरांवाला से। तो एक दफ़ा वो ऐसे देखते हैं मुझे, सर से लेके पाँव जी। तक और नीचे तक, हाँ जी। यार उधर के लोग तो बड़े पहलवान हैं, जी ये जी वो। बिल्कुल पहलवान है। तो मैं फिर उन्हें बताता हूँ, मैं भी नहीं रुकता, जी मैं भी कहता हूँ मैं भी पहलवान हूँ। वो कहते हैं ये कैसा पहलवान। मैं कहता हूँ जी आपको जी क्या पता कि ये पहलवानी जो मैं करता हूँ इसके लिए मैंने कितने साल लगाए, और अपने पेट के जो सिक्स पैक हैं इनको बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, और अपने जिस्म के जो जी। कट्स हैं इनको, इस जिस्म को इस शेप में लाने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की। तो लोग कहते हैं अच्छा सिक्स पैक वाले पहलवान हो। मैं कहता हूँ हाँ जी। हाँ तो जी खैर पहलवान माशाल्लाह। तो इस तरह कोई समझा जाता है जैसे माशा, तो लोग इस तरह के आदमी को पहलवान समझते हैं, हमें तो कोई लिफ्ट। तो बिल्कुल ऐसी बात है। जी जी। और गुजरावाला में आप पहलवानी वगैरह भी करते रहे हैं कि नहीं? नहीं गुजरात पहलवानी का तो नहीं की, लेकिन वैसे जो हमारा काम है ये हमारा है भी वैसे पहलवानी वाला ही। जो हम काम करते हैं इलेक्ट्रिकल का वायरिंग का, तो उस पे चाहिए भी पहलवान होते हैं। वो बंदा फिट हो तो वो काम करता है। वैसे भी आप रूटीन में जो हम काम कर रहे होते हैं वो ठीक ठाक पहलवानी वाले काम है, इसलिए अपने आप को फिट रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने लिहाज से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। लेकिन ये है कि बाकी जब अपने शहर की बात हो तो फिर वो पता है ना आपको, अच्छा भला खाना फिर वो बंदा पूरे टेस्ट के साथ खाता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और गुजरांवाला के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि लोग मज़ाहियत बातचीत, तो उसमें वो साहब कह रहे थे कि गुजरांवाला के लोग गाड़ी देख के ये नहीं कहते बड़ी अच्छी है, कहते हैं बड़ी मज़ेदार गाड़ी है, यार क्या बात। जी जी। तो हर चीज़ को वो इसी नज़र से देखते हैं जी जी कि वो मज़ेदार खाबों है। के नज़र से देखते हैं। तो खुश खुराक है माशाल्लाह, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पहलवान हैं अभी भी। हाँ और जी। बिल्कुल ये सारी चीज़ें हैं, सही फरमाया आपने। अच्छा शहजाद इकबाल साहब, आप हमें ये बताएं कि कल आप सर नवीद हुनरवाला साहब के साथ मेरे यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए और मुझे हाँ जी। सरप्राइज़ कर दिया। जी जी। तो मैं उस वक़्त गो के इंटरव्यू कर रहा था, 25 मिनट का इंटरव्यू मुझे 17 मिनट से क्लोज करना पड़ा आपकी आमद का, जब मैंने देखा मैसेज। तो सर से आप कल कैसे मिले, और कैसे मुझ तक आपका आना हुआ? असल में सर के पास मैंने काफ़ी देर से राब्ते में था सर के साथ। तो सर अभी मुझे देख रहे थे कि ये बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर इसके मोटिवेशन है, आगे बढ़ने का इसके अंदर माइंड है। तो उन्होंने मुझे कुछ टाइम दिया, उन्होंने कहा अभी बेटा सब्र करो। तो मैंने भी सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इरादा किया हुआ था कि काम जो है ना वो करना है लाजमी। तो सर के पास मैंने कल जाने का इत्तेफाक करना था। तो सर को मैंने पहले मैसेज किया, सर कह रहे थे कि मैं बेटा खुद ही उधर आ रहा हूँ, मेरे मामू की डेथ हो गई है, तो आप उधर ही रुको, मैं आप उधर आके मिलूंगा। तो फिर मैंने सर को देखा, सर से बात की, मिला उनको, उनको साथ लेके आया। फिर मैंने अपनी दुकान दिखाई उनको। तो फिर हमने लंच उनको मैंने करवाया। तो मुझे आप याद है, मेरे कहा जाहद भाई भी आए हुए हैं। तो ये लिए बड़ा अच्छा मौका है कि सर को बोलूँ कि उनसे भी मिलने चले। तो फिर हमने आपसे रब्ता किया, आपका आगे इंटरव्यू चल रहा था।
پھر ہم نے آپ کو میسج وغیرہ کیے تو آپ نے اسی وقت میسج رپلائی کیا کہ آپ موسٹ ویلکم آئیں. تو پھر ہم نے سیدھی ادھر سے گاڑی آپ کے پاس چلے آئے. اور سر کو آپ نے بھی میں نے بھی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اچھا پروٹوکول دیا, وہ خوش گئے. یہی ہمارے لیے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے شہر میں کوئی بھی مہمان ہے وہ ہماری عزت کا باعث ہوتا ہے اور وہ خوش جائیں ہمارے سے. اور یہ ہمارے ویسے بھی بڑوں نے کہا ہے کہ جو اپنے آپ کے مہمان آئیں ان کو قدر اس طرح کرو کہ جس طرح وہ آپ کے گھر کے افراد ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ان کا پوری خدمت کی. تو الحمدللہ آپ نے بھی خوب ان کی خدمت کی ماشاءاللہ. تو آپ سے ملاقات بھی ہو گئی, وہ دلی خواہش تھی آپ دونوں سے ملنے کی, اللہ تعالیٰ نے کل دونوں خواہشیں پوری کر دی. تو وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا چلو یا اللہ دیر صحیح ہے اندھیر نہیں ہے آپ کے گھر میں. اور ہر انسان کو چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے, جو زمانہ چل رہا ہے اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں. تو اس کے لیے آپ کو تگودو کرنی پڑتی ہے. آپ کوشش کریں. اور اگر میں آپ تک پہنچا ہوں, مجھے تقریباً 6 ماہ ہو گیا, آپ سر سے بھی آپ سے رابطہ کر رہا تھا. جی بالکل شہزاد بھائی اسی طرح ہیں. اور یہ بتائیں اس سے پہلے تک آپ سر نوید ہنر والا سے ملے تھے, پہلے ملاقات تھی آپ کی؟ نہیں, پہلے میری ان سے فون پہ بات ہوتی تھی. تو کل میں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی جب بہانہ بنا وہ ادھر آئے. وہ ان کے پاس جانا تھا تو وہ خود ہی آ گئے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان سے ملاقات بھی ہو گئی اور ان کے بہانے سے آپ سے بھی ملاقات ہو گئی. یہ میرے لیے ویسے سمجھے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اکٹھے ملاقات ہو گئی آپ دونوں سے. دلی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کٹھی خوشیاں دے دی آپ کے لیے. صحیح. ہاں بالکل اسی طرح. اور تو پہلی دفعہ آپ روبرو ہوئے ہیں ایک دوسرے کے, یعنی سر جی بالکل, نوید ہنر والا. یہ سمجھ لیں کہ یہ صحیح, میں نے ٹھیک پہلا ہو گیا. قدم اٹھایا ہے اس میں, جن سے میں پہلا قدم. آپ تو ملے تھے پہلے نا لاہور میں, تو ہاں میری طرف سے یہ پہلا قدم تھا ان کی طرف ہاں, آپ کی میری تو طرف. اور ملاقات تھی. انشاءاللہ ہاں جی ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور اہم سوال اسی سوال میں سے نکلا کہ سر ریحان اللہ والا صاحب کو آپ نے کیسے جانا, کیسے آپ ان کے فالوور اور ان کے چاہنے والے بنے؟ سر ریحان, جب میں نے فیس بک یوز کرتا تھا تو میں نے ادھر جہاں میں کام کرتا ہوں تو میں آن لائن ارننگ کے بارے میں نا کافی کوشش کر رہا تھا, کوئی نہ کوئی مجھے نا سورس ملے. تو اس میں شہزاد نے میری سر آواز آ ریحان. رہی ہے آپ کو؟ جی جی سر آ رہی ہے آواز. شہزاد آپ رپیٹ کریں گے, آواز کٹ گئی تھی, ہمارے ویورز تک آپ کی آواز نہیں پہنچی. آپ رپیٹ کریں گے آپ نے کیا کہا؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں نا اصل میں جہاں میں کام کر رہا ہوں ادھر میں نے فیس بک یوز کافی میں آن لائن کر رہا ہوں. آن لائن ارننگ کے بارے میں نا میں شہزاد سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. جی صاحب بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی شہزاد آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے. ہاں جی کلیئر آ رہی ہے آواز. جی ٹھیک ہو گیا ہے, زبردست. میرا سوال یہ تھا کہ آپ سر ریحان اللہ والا صاحب سے کیسے ملے اور کیسے آپ ان کے چاہنے والے اور فالوور بنے؟ تو آواز کٹ گئی تھی, ذرا رپیٹ کیجیے گا. جی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تقریباً 1 سال ہو گیا آن لائن ارننگ کے بارے میں نا. لوگ کہہ رہے تھے یہ مذاق ہوتا ہے, یہ کوئی نہیں اس میں نا ارننگ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی, بس یہ ایک نا فراڈ ہے. تو میں نے کوشش کی اس کے بارے میں سیکھنے کی.
तो उसमें मैं फेसबुक पे सर रेहान अल्लाह वाला साहब की वीडियोस देखता था। फिर मैंने उनको एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने मुझे इस के बारे में वीडियोस देखी मैंने कि क्या काम करते हैं। तो उसमें मुझे बड़ा दिल की ख्वाहिश हुई कि जिस तरह ये मेहनत कर रहे हैं पूरे मुल्क में, वो घूमते हैं कि ये कहते हैं आपके पास हुनर हो कोई भी तो वो ज़ाया नहीं है, तो कोशिश करके अपना आप बेहतर करें। तो उसमें मुझे भी मोटिवेशन मिली कि मैंने कहा यार अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने फिर सर से अटैचमेंट की। उसके बाद उनके फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में जो उनका टारगेट है म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाने का, वो मैं कर रहा हूँ। तकरीबन 215 20 फ्रेंड हो गए हैं मेरे। तो उनमें मुझे नए फ्रेंड दोस्त बड़े मिले, आपकी तरह आप भी मिले, और नवीद हुनोरा साहब से मुलाकात हो गई। तो ये एक नेट के जरिए में मुलाकात हो गई। वैसे तो हम एक दूसरे से शायद कितनी दफ़ा एक दूसरे के पास से गुजरे हों, लेकिन हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो ये हमें सोर्स मिला नेट के जरिए। मैं अब समझ लें कि सर के साथ इधर बैठ के अटैच हूँ, तो वो मुझे जानते हैं कि मेरा कोई ना कोई इधर बंदा है, उनसे बात कर सकते हैं। तो ये कुछ दोस्त कहते हैं कि इंटरनेट से हमें क्या फ़ायदा है, तो ये बेहतर मुस्बत फ़ायदा है। ये अगर हम कोशिश करें कि इस तरफ अपना रुझान करें, हमारी नौजवान नस्ल को और चीज़ें ले गई हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस साइड पे जुड़ें जिसमें हमारी मुल्क की पॉजिटिविटी जो शो हो, अपने आप को हम बेहतर करें। और दूसरा सर रेहान अल्लाह वाला साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने उस तरह गेट्स पैदा करें कि जो सर के नक्शे कदम पर चले, तो उनकी तरह आप अपने मुल्क को बेहतर करें। अब वो एक उनकी लास्ट मैंने वीडियो देखी थी जी जी। जिसमें जिसमें वो कह रहे थे कि कूड़ा नमाज का कहा था, वो कूड़ा पड़ा हुआ था। उसमें बड़ी फिक्र करते हो, कह रहे उन्होंने एक ड्यूटी वगैरह एक प्लान तैयार किया। वो कह रहे हैं कि आप कूड़े से भी कमाई कर सकते हैं। अब ये है कि हम कोशिश करके उस तरफ कदम बढ़ाएं अपने। हम किसी भी चीज़ को जब शर्म से बगैर करेंगे ना, शर्म महसूस ना करें, तो उसमें हमारे लिए बड़ा बेहतर है। सही शहजाद इकबाल साहब, आप सही फरमा रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल सर वाला साहब की यही रोशन ख्याली, यही दूरंदेशी जिससे हम जैसे आदमी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, गुजरांवाला बेशक, वाले लोग, पूरा पाकिस्तान। बेशक। तो ये बड़ी हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। और बिल्कुल, म्यूचुअल फ्रेंड आपके हो गए तकरीबन आधे, बाकी आप 500 करें। उसके साथ साथ इंशाल्लाह जब आपके 500 म्यूचुअल फ्रेंड होंगे तो आपकी शख्सियत में एक वाज़िया निखार आएगा, आप जी देखेंगे बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इंशाल्लाह कि तो बड़े दोस्त मिले हैं इस अ, तरह। ये आपका पहला इंटरव्यू है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है? जी, लास्ट टाइम अहमद भाई के साथ कोशिश की थी, लेकिन इंटरनेट ठीक का हो इशू गया। बना। तो उसके अब साथ आपने मुझे एक इंटरव्यू दिया, ये आपका पहला है, ये पहला इंटरव्यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला इंटरव्यू है। हेलो शहजाद, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज़ में। जी वेलकम बैक। असल में कोई इंटरनेट का इशू है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन थोड़ा सा गुजरांवाला में हाँ जी, इसका वो ज़रा ज़्यादा ही असर है। तो असल में वो सर भी इसी बारे डिस्कनेक्ट में हो जाता बातें है। कर रहे हैं ना। सर भी इसी बारे में कह रहे हैं कि इंटरनेट के जो हम्म। जिस तरह हमारे मुल्क में हम यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए ना। जितना माशाल्लाह हमारा हम्म। नेटवर्किंग है, हमारा आईटी शायद जिस तरह हमारे तालब इलम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट सर हिशाम साहब भी कह रहे थे कि इसमें इम्प्रूवमेंट होनी है, और सर रेहान अल्लाह वाला साहब भी ये कहते हैं कि इंटरनेट को जितना हो सकता है हम आवाम के लिए सस्ता करें, जिससे वो सहूलियात फ़ायदा उठाएं इससे।
जी आवाज़ आ रही है भाई? शहजाद आवाज़ कट रही थी शायद, मेरे ख्याल में। हाँ, अब आ रही है। मैं जिस जगह बैठा हूँ इधर बड़ा ज़बरदस्त सिग्नल है, बड़े स्ट्रॉन्ग है। जी जी। तो मुझे लगता है कि शायद आपकी तरफ से थोड़ा सा नेट वीक होने का कोई इशू है। चलें, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंटरव्यू भी पूरा होगा और अपने व्यूवर्स को हम आपकी जो नई ख्वाहिशात हैं, जो आप ज़िंदगी में आगे करना चाहते हैं, वो सारे आपके जो एम्स है वो बताने में और समझाने में कामयाब होंगे। अगला मेरा सवाल ये है आपसे शहजाद के, चलें आप सर से मिले, आपने म्यूचुअल फ्रेंड आप बना रहे हैं बड़े जोशो खरोश से, जी अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। और बड़े मेहरबान। ये जो सर का एक फॉर्म है जिसका नाम है कनेक्टेड पाकिस्तानी, जी कनेक्टेड पाकिस्तानी के फॉर्म से हम आप इसमें मिले हैं, जैसे आप सर नवीद हुनरवाला साहब और मैं। जी जी। तो ये बताएं, ये आपको कैसा लगा? देखे ना, इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको नहीं जानता था, आप मेरे काम के बारे में नहीं जानते थे। तो इंटरनेट कनेक्टेड पाकिस्तान के साथ ये है, हम एक दूसरे को अच्छा मशवरा दें, अच्छा एक दूसरे के लिए उसको प्रोवाइड करें, एज ए लीडर, एज ए दोस्त, एक दूसरे की हेल्प करें। क्या जो हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक दूसरे को हम साथ इम्प्रूव लेके के चलें, ताकि हर बंदा अपने अपनी फील्ड में जो माहिर है वो आगे दूसरों को नॉलेज शिफ्ट करे। जी शहजाद, क्या फरमा रहे थे आप? रिपीट कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि जिस तरह मैं आपसे और आप असल में बीच में कॉल आ गई है। जी शायद इस वजह से हमारा राब्ता मुनक़ता हो रहा है बार बार। हाँ जी। और पहले भी कॉल ही आ रही थी आपको? कॉल का इशू बन रहा है बीच में। आप कॉल काटें और हमारा इंटरव्यू रह गया को 3-4 मिनट का, इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं इधर से ही। और कल बिल्कुल इसी तरह मेरे साथ भी हो रहा था जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो हो जाता है, जी लाइव है हम, तो ऐसे मामला हो जाते हैं, फॉरगेट इट। अच्छा, उसके अलावा शहजाद, आप अब आपके फ्यूचर में क्या करने का प्लान रखते हैं, क्या इरादा रखते हैं आप? हेलो जी, ज़्यादा भाई आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, शहजाद आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, यकीनन आप भी मुझे सुन पा रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि आगे फ्यूचर के बारे में बताएं, फ्यूचर प्लान क्या हैं आपके, क्या गोल्स हैं आपके, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी फ्यूचर में? में फ्यूचर में इंशाल्लाह सर नवीद हुनरवाला साहब ने मुझे बोला है कि आप हमारे साथ, आप हमारी टीम में शामिल, हमने आपको कर लिया है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट देंगे जिसमें आपने खुद अपने आप को इम्प्रूव करना है, और आगे जितने भी आपके दोस्त हैं जो मोटिवेट फुल हों, जो काम करना कि दिल में चाहत रखते हो, आप उनको सब अपना काम कर रहा हूँ, तो कहते हैं अपना काम आके उनको सिखाएं। तो मैं कोशिश करके इंशाल्लाह अपना काम आगे दोस्तों को ज़रूर इंशाल्लाह सिखाऊंगा। कम अज़ कम मैं चाहता हूँ कि हर जो बच्चा मेरे पास आता है, शागिर्द मैंने रखे हुए हैं, तो उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हफ्ते बाद उनको खर्चा भी देता हूँ, ताकि वो अपना दिल जो है ना वो इसमें काम में लगाएं, ताकि वो अपना इम्प्रूव करें, बेहतर करें। आगे जाके वो किसी और को जगह जाके काम अगर करते हैं तो जाके किसी और को वो काम सिखाएं भी आगे। उनको यही कह रहा हूँ, आपने जो काम सीखना है, इसी तरह मुझे बड़े भाई ने भी सिखाया। वो कहते हैं आप जो काम कर रहे हो वो टोटली आगे किसी को सिखाओ, ताकि वो
मुकम्मल तौर का एक काम का हुनर का ग्रिप हासिल करे और आगे वो अपना जाकर किसी और को सिखाए तो उसको किसी से किस्म की टेंशन ना आए। तो सर नवीद वाला हुनरवाला साहब ने कहा था मुझे कि बेटा हमने आपको टीम में शामिल किया है, तो इंशाल्लाह आप अपने आप को घबराएं नहीं, तो हम आपको इंशाल्लाह आगे इम्प्रूव करेंगे। तो आपसे भी मुलाकात हुई, आपने भी माशाल्लाह हौसला दिया कि आप हिम्मत ना हारें। अगर और सबसे ज़्यादा बात आपको जो मुझे अच्छी लगी कि आपने जो पंजाबी में इंटरव्यू शुरू किए हैं, हमारे जो गुजरांवाला की आवाम है कम अज़ कम वो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल वो भी मानेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अच्छी थी, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने गुजरांवाला शहर लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो उर्दू में बोलने में भी घबराते हैं। तो पंजाबी में ये है कि वो आम रूटीन में बात करते हैं, तो उन्हें कुछ इस तरह बात हम एक दूसरे के साथ सादा लफ्ज़ में बात कर सकते हैं, जिससे वो एक दूसरे को इम्प्रूव कर रहेंगे इंशाल्लाह। और उनके अंदर जो डर है, जो झिझक है, वो ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर खुद अपने अंदर डर जो झिझक ख़त्म नहीं करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो अकेले बैठ घर में हो तो नहीं, एक दूसरे साथ कनेक्ट होंगे। वो कनेक्टेड पाकिस्तान के जरिए सर रेहान वाला हमें जोड़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। और ये मैंने इसीलिए शुरू किया, और ये आइडिया मेरा नहीं था, सर रेहान अल्लाह वाला साहब का था कि आप डिजिटल लिटरेसी जो है ये पंजाबी में बनाओ। तो बड़े बस वो पंजाबी हमारे में, लिए बड़ा अच्छा हाँ सोचते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। दूर अंदेश है माशाल्लाह, बहुत आगे की सोचते हैं हमारे लिए। मुख्तलिफ तरह से वो ढूंढते हैं कि किस तरह एक आम आदमी को फ़ायदा हो। यही उनके काम की खूबसूरती है, यही जी उनकी साद सोच भाई की आपकी मैं बात खूबसूरती है। कर रहा हूँ। उनको कोई लालच तो नहीं है हमसे, है वो बेलौस होकर लगे हुए हैं हमारे लिए। वो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं कि यार ये हमारा जो आने वाली नस्लें हैं ना, ये कल को हमें ना कहे ब्लेम दें कि हमने हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को इतना इम्प्रूव, और वैसे भी शरीयत कहती है जो नॉलेज ज़माने के साथ में आपको मिल रहा है उसको हासिल करें। तो वो अगर हम हासिल नहीं करते तो उसमें हम ज़माना के पीछे रहना भी ये भी बेवकूफ़ी है। ज़माना जो वक्त चल रहा है उसके साथ इल्म हासिल करें, जिस तरह का इल्म हमें मिल रहा है वो साथ हमें भी उस तरह का ए टू जेड पता हो। फार्म सर रेहाना वाला ने मुहैया किया है। ये हमारे जी पास लाइट का शहजाद इशू भाई, हो क्या गया। इशू है? लाइट चली गई है? हाँ जी। चले कोई नहीं, इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। और जिनकी रही तो फिर हम मज़ीद जो बातें हैं जो अपने व्यूवर्स तक नहीं पहुंचा पाए, अपने ख्यालात, और जो जैसा आप तबादला ख्याल कर रहे थे हमारे साथ, इंशाल्लाह दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ इंशाल्लाह। आपका, शहजाद इकबाल मुस्तफ़ाई साहब का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और कोशिश मसरूफियत ज़िंदगी में से। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने हमारे इंशाल्लाह सर दावतनामे को खुशदिली से कोशिश कबूल करेंगे किया है, इंशाल्लाह इसके लिए आप भी मैं मशहूर मेरे हूँ। अपने बहुत शुक्रिया। सही। तो ये थे हमारे साथ शहजाद इकबाल मुस्तफ़ाई साहब। इन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर किया। नवीद हुनरवाला साहब से ये मिले और मुझसे मिले। मैं भी बड़ा मशहूर हूँ इनका। और कल आपको यही बहुत सर शुक्रिया। नवीद हुनरवाला साहब को मुझ तक लेके आए, क्योंकि ये मेरे शहर के हैं। तो मैं इस वजह से भी वंस अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा शहजाद भाई को। तो इसी पैगाम के साथ आप देखने और सुनने वालों से इजाज़त चाहूँगा कि मेरा पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और पाकिस्तान का हर शहरी बरसरे रोज़गार हो, ताकि हम सूदी क़ुव्वतों से बच सकें, और जिस तरह हम जकड़ते जा रहे हैं रोज़ ब रोज़, इन चीज़ों से हम निकल सकें। दुआ में याद रखिएगा। मैं हूँ राना ज़ाहिद तुर्की वाला। पाकिस्तान जिंदाबाद।